السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الملک کا پارٹ 10 پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جیسا کہ UK، USA، کینیڈا، امریکہ، کسی بھی کنٹری کے لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اوکے، چلیے سبق آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ افمن یمشی مکبا علی وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ یہاں پر دیکھیے آفا من یمشی، حمزہ کے اوپر زبر، فا کے اوپر زبر، دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آفا، میم کے اوپر زبر ہے، آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کے مجموعے میں سے یا مشدد حالت میں آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آفا میں، آفا میں، آگے دیکھیے یا کے اوپر زبر، آگے میم ساکن ہے، یا کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ 29 حروف ہجا میں سے جو بھی حرف آ جائے تو میم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اخفا غنہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ جیسے یم، یم یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ شین کے نیچے زیر ہے، آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ شی، شی ملا کر پڑھتے ہیں۔ افمن یمشی، افمن یمشی مکبا، میم پیش مو، کاف با زیر کب، مکبا دو زبر بن، مکبن۔ تشدید والے حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے، تھوڑی دیر رک کر پڑھا جاتا ہے، جیسے مکبن، مکبن۔ آگے دیکھیے یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے مکبن، مکبن، علی، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر کھڑا زبر، زبر کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کو کھڑے زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور عین کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، جیسے علی، علی، عین کی جگہ حمزہ نہیں پڑھنا آپ نے، علی ایسے نہیں پڑھنا، علی، اور ساتھ یا لکھی ہوئی آئی ہے لیکن جوڑ و رواں کرتے وقت اس کا نام نہیں لیں گے۔ نیکسٹ پڑھیے وجہہ، وجہہ، واو کے اوپر زبر، آگے جیم ساکن ہے، واو کو جیم سے ملائیں گے، جیم ساکن حروف قلقلہ کے حروفوں میں سے آ رہا ہے تو ڈبل ساؤنڈ آئے گی، یعنی جنبش پیدا ہوگی اور واو کو ادا کرتے وقت ہم اپنے ہونٹوں کو مکمل گول کریں گے۔ وج، وج، دیکھیے جیم کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا، ہاں کے نیچے زیر ہے، دیکھیے جیم کی ڈبل ساؤنڈ آئی، جیسے وج، ہاں کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچ پڑھیں گے، ہی، ہاں کو بھاری ساؤنڈ سے ادا کریں گے، وجہی، وجہی، اور ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے، اوپر دیکھیے چھوٹی مد آ رہی ہے، چھوٹی مد کی نشانی کیا ہے؟ کلمے 2 ہوں، پہلے کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہو،
تو यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ना है। जैसे ही, वजही, हा को भारी साउंड से अदा करेंगे। आहदा, हमजा के ऊपर ज़बर, आगे हा साकिन है और हमजा को हा से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जैसे आह, दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है और ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है, ये मद भी मद्दे मुनफसिल है। इसको भी हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। 7 जा लिखी हुई आई है, लेकिन जोड़ो रवां करते वक्त इसका नाम नहीं लेंगे। आहदा अला वजहिही आहदा, अम्मन यमशी अम्मन यमशी। यहाँ पर देखिए हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे मीम मुशद्दद है। मीम मुशद्दद हमजा को मीम से मिलाएंगे। मीम मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। और आगे देखिए नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। अम्मन यमशी, या के ऊपर ज़बर, आगे मीम साकिन है, या को मीम साकिना से मिलाएंगे और यहाँ पर मीम का इजहार होगा, इजहार शफवी का कायदा होगा। और शीन को अदा करते वक्त हमारी आवाज़ फैलती हुई महसूस होगी। और या मदा को हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। अम्मन यमशी। नेक्स्ट पढ़िए सविजन सविजन। सीन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे सा। सीन को सीटी से अदा करेंगे, सख्ती से अदा करेंगे। वाव के नीचे ज़ेर है, आगे या मुशद्दद है, वाव को या से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है। जैसे सविजन सविजन। और ऊपर देखिए 2 ज़बर की तनवीन है और तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरूफों में से आइन आ रहा है, तो यहाँ तनवीन में इजहार होगा। जैसे सविजन आला, यानी तनवीन को हमने जाहिर करके पढ़ा, इख्फा गुन्ना कुछ भी नहीं किया। और आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आला सविजन आला सिरातिम। सौद के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे सी। सौद रूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रॉ को पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर है। सिरा सिरा। तो के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, आगे मीम मुशद्दद है, तो को मीम मुशद्दद से मिलाएंगे। मीम मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा और तो को मोटा पढ़ेंगे। तिम सिरातिम मुस्तकीम। मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता क़ाफ या ज़ेर क़ी मुस्तक़ी। मीम 2 ज़ेर मिन मुस्तक़ीमिन। आगे वक़्फ़ मुस्तक़ीम। देखिए काफ को हमने मोटा पढ़ा हुरूफ इस्ताला में से और सीन को सख्ती और सीटी से पढ़ा। अला सिरातिम मुस्तक़ीम। वक़्फ़ की जब वक़्फ़ करेंगे तो मीम की नीचे जो 2 ज़ेर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और मीम साकिन हो जाएगी और वक़्फ़ होगा वक़्फ़ बिल अस्कान। नेक्स्ट पढ़ते हैं क़ुल हुवल्लज़ी। क़ुल हुवल्लज़ी। क़ाफ़ के ऊपर पेश है, आगे लाम साकिन है, क़ाफ़ को लाम से मिलाएंगे। क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, हुरूफ इस्ताला में से है और साकिन हर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे कुल, आपने ये ख्याल करना है कुल कुल ऐसे नहीं पढ़ना क्योंकि कलकला पैदा हो जाता है। कुल हुवल्लज़ी। हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। हो नहीं पढ़ना, मजहूल है, हु पढ़ना है। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे लाम मुशद्दद है, वाव को लाम से मिलाएंगे और बीच में अलिफ ख़त्म हो जाएगा। वल हुवल। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। जाल के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है और जाल को नरमी से अदा करेंगे ज़ी।
हुवल्लज़ी, ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है जो अभी मैंने बताई है आपको, मद्दे मुनफसिल। इसको हमने 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, अंशअकुम, हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है। नून साकिन के बाद हरूफे इक्फा के 15 हरफों में से शीन आ रहा है, तो नून साकिन में इक्फा होगा। तनवीन और नून साकिन के इक्फा को इक्फा हकीकी कहते हैं। जैसे शीन के ऊपर ज़बर, हमजा के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। शाआ, अंशाआ। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे। यहाँ पर मीम साकिन का इजहार होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो मीम का इजहार किया जाता है। कायदे का नाम होता है इजहार शफवी। अंशाअकुम, कुल हुवल्लज़ी अंशाअकुम वजअल लकुमुस्समअ। वाव के ऊपर ज़बर, जीम आइन लाम, और लाम के ऊपर ज़बर। इन सब को हमने हरकात को यानी ज़बरों को बगैर खींचे पढ़ना है। कैसे? वजअल, वजअल, और आइन को हलक के दरमियान से अदा करना है। काफ के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। को नहीं पढ़ना, मजहूल होता है। वजअलकू, और मीम के ऊपर पेश है, आगे सीन मुशद्दद है, मीम को सीन से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जुमाओ से पढ़ा जाता है, और सीन सख्ती वाला हरूफ भी है, सख्ती से भी पढ़ेंगे। मुस, मुस, और सीन को मीम से मिलाएंगे। सम, मुस्सम, मीम का इजहार होगा। और आइन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे, और आइन को हलक के दरमियान से पढ़ेंगे। लकुमुस्समअ वजअल लकुमुस्समअ, वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार, वाव को लाम से मिलाएंगे। वल, वल, और हमजा को बा से मिलाएंगे। हमजा के ऊपर ज़बर है, आगे बा साकिन है। बा रूफे कलकला में से आ रहा है, डबल साउंड पैदा होगी। अब, वल अब, और सौद के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। सौद रूफे इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। सौ, वल अब सौ, रा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। रा, वल अब सौरा वल अफ़ईदा, और वाव के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, वाव को लाम से मिलाएंगे। वल, हमजा को फा साकिन से मिलाएंगे। अफ, वल अफ, हमजा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ई, दाल के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर ज़बर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। वल अफ़ईदता, वल अफ़ईदता। आगे देखिए जीम की अलामत आ गई, जिसे वक्फ जायज़ कहते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे। वल अफ़ईदा, ये जो गोल ता है वक्फ की हालत में हाय साकना में तब्दील होगी, और वक्फ का नेम होगा वक्फ बिल इब्दाल। वल अफ़ईदा वल अबसार वल अफ़ईदा। क़लीलम, क़ाफ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। क़ाफ को मोटा अदा करेंगे, रूफ़ इस्ताला में से है क़ा। लाम के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ली, क़ौली, और लाम के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, आगे मीम मुशद्दद है। लाम को मीम मुशद्दद से मिलाएंगे, और एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। क़लीलम, क़लीलम, मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मा, क़लीलम मा तशकुरून, ता के ऊपर ज़बर, आगे शीन साकिन है, ता को शीन से मिलाएंगे। शीन को अदा करते वक्त हमारी ज़बान फैलती हुई, हमारी आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है। जैसे तश, तश, काफ के ऊपर पेश, बगैर खींचे पढ़ेंगे। कू, रा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे।
را کو پر پڑھیں گے قرو، نون کے اوپر زبر، بغیر کھینچے پڑھیں گے نا۔ آگے دیکھیے گول سرکل آ گیا جسے آیت کہتے ہیں، وقف تام بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ قلیلا ما تشکرون، قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔